যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, ষোড়শ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 140 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃত অন্তলীলা 16.140 অনওয়ার্ডস। 140 নম্বর শ্লোক এর ব্যাপারে লেখা আছে। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। গোপিকাদের উক্তি: শরতের আগমনে বৃন্দাবনে গোচারণ করার সময় শ্রীকৃষ্ণ তার বাঁশি বাজালে গোপিকারা তার বংশীর সৌভাগ্য বর্ণনা করে এইভাবে আলোচনা করেছিলেন। ওকে, गोपिकारा तार वंशी सौभाग्य, वंश के वंश बांसुरी का कितना सौभाग्य है, ये श्लोक में शायद मिलेगा। इसके बारे में अनुवाद, सॉरी, श्लोक पहले। गोप्या किम् आचारदयं कुलसंस्मवेनु, गोप्या किमाचरदया कुशलं स्मं ववेरु। दामोदरधरा सुधमपि गोपिकानां, दामोदराधरसुधामपि गोपिकानम्। पुङ्क्ते स्वयं यदवसिष्ठरसं हृदन्यो, पुङ्क्ते स्वयं यदवसिष्ठरसहृदयम्। ऋष्यत्वचुश्रु मुमुचुस्तरवो यथार्या, ऋष्यतशोषु ममुचुतरो यथाय। कोई एक गोपी बाकी गोपियों को बोल रही है, हे गोपीगण, এই বেনু কি স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। আহা, কিতনা স্বীকৃতি है इस বেনু का, যে গোপিকাদের লভ্য কৃষ্ণের অধর সুধা সে ভোগ করছে। ওকে, समझ में अभी तक? কুল বৃদ্ধগণ যেমন কোন মহৎ সন্তানের জন্ম দেখে তার জন্য আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করেন, তেমনি এই বেনু সে সমস্ত নদীর জলে পুষ্ট হয়েছে। সেই সমস্ত নদী তাদের উপরিভাগের বিকশিত পদ্ম নিচয় রূপ রোম সমূহের দ্বারা হৃষ্ট হয়েছে, এবং যে তরু তা জন্ম হয়েছে সে জাতীয় সকলে আনন্দ মধু ধারা রূপ অশ্রু বর্ষণ করেছে। সর্বনাশ, খুব হাইফাই বাংলা, দাঁড়ান ইংলিশটা সাপোর্ট নিতে হবে। The forefathers of the flute, the bamboo tree, কুল বৃদ্ধগণ যেমন কোন মহৎ সন্তানের জন্ম দেখে, the forefathers of the flute, the bamboo tree, shed tears of pleasure. My dear gopis, what auspicious activities the flute have performed to enjoy the nectar of Krishna's lips independently and leave only a taste for us, the gopis, for whom the nectar is actually meant. ये भगवान का अधर का जो नेक्टर है वो हम लोग के लिए है, गोपी लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्या भाग्य क्या होगा, इन्हें भी यही सब ले लिया, हम लोग का चीज यही ले लिया। द फोरफादर्स ऑफ द फ्लूट, द बैम्बू ट्री। अभी बांसुरी कहां से बनाया गया है? बैम्बू ट्री से। shed tears of pleasure. His mother, the river, on whose bank the bamboo was born. अभी बैम्बू का खानदान का बारे में बता रहे हैं, फ्लूट का खानदान के बारे में। फ्लूट का फोर फादर यानी एंसेस्टर कौन है? बैम्बू ट्री। और उनका मदर कौन है? जो नदी के तट पे वो बैम्बू ट्री था। ठीक है, His mother, the river on whose bank the bamboo tree was born, feels jubilation, बहुत आनंद होता है, and therefore her blooming lotus flowers are standing like hair on her body, and therefore her blooming lotus flower यानी उस नदी में जो जो खिला हुआ कमल था are standing like hair on her body. वो आनंद से, जैसे हम लोग जब रोमांच होता है ना तो हम लोग रोंगटा खड़ा हो जाता है ना, तो वैसे ही वो सब लग रहा है कि खड़ा हो गया,
मैंने नदी के ऊपर ही तो है सब, कमल ऊपर ऊपर दिख रहा है, ये लग रहा है। ठीक है, आनंद से। मैं एक बार बेंगली में पढ़ रहा हूँ फिर से। कुलबृद्धगण যেমন কোনো মহৎ সন্তানের জন্ম देखे, तो ये कब हुआ? रोंगटा क्यों खड़ा हो गया? जब ये फ्लूट जन्म लिया था, ये फ्लूट का जो बांसुरी का जो बैम्बू है वो जन्म लिया था, उस समय ये घटना घटी। कुलबधूगण, ये इंग्लिश में लिखा नहीं है, आई डोंट नो हिंदी में लिखा है या नहीं। কুলবধূ বৃদ্ধগণ যেমন কোনো মহৎ সন্তানের জন্ম দেখে তার জন্য আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করেন, তেমনি এই বেনু যে সমস্ত নদীর জল পুষ্ট হয়েছে, সে সমস্ত নদী তাদের উপরিভাগের বিকশিত পদ্ম নিচয় রূপ রোম সমূহের দ্বারা হৃষ্ট হয়েছে, এবং যে তরু থেকে তার জন্ম হয়েছে সেই জাতীয় সকলে আনন্দে মধুধারা रूप अश्रु वर्षण करছে, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा भाग्य होने वाला है। ये बांस डायरेक्ट बांसुरी बनने वाला है एक दिन, और भगवान के अधर से चिपक के रहने वाला है। सुमना करेंगी माता जी। प्रभु रोमांच किनको हो रहा है, नदी को, बांस को या बांसुरी को? मम्मी को। मम्मी कौन है? नदी को। नदी। यस, इंद्राणी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, এই রোমকূপ হচ্ছে এখানে পদ্ম ফুলগুলোকে নদীর রোমকূপ বলছে, সেটা যেমন পদ্ম ফুল ফুটেছে আর আমাদের গায়ের রোমকূপ যেমন ফুটে ওঠে, সেই তার সঙ্গে তুলনা করেছে। এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া, লোকে শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া, উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া, उत्कंठाते अर्थ करे प्रलाप करिया। अच्छा, नया कोई ट्यून से करते हैं। ये कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, ये तो किया। नाचे शची नंदन, वो भी किया है। श्री रूप मंजरी पद जारो धन संपद, एह ब्रजेंद्र नंदन ব্রজের কোন কন্যাগণ অবশ্য করিব পরিণয়, অবশ্য করিব পরিণয়। বলি हे ब्रज नंदना ब्रजेर कोन कन्यागण अवश्य करिबे परिणे, अवश्य करिबे परिणे। সে সম্বন্ধে গোপীগণ যারে মানে নিজ ধন, সে সুধা অন্যের লোভ নয়, সে সুধা অন্যের লোভ নয়। সেই সে সম্বন্ধে গোপীগণ যারে মানে নিজ ধান, সে সুধা অন্য লাভ নাই, সে সুধা অন্যের লাভ নাই। কোন গোপী অন্য গোপীদের বলছেন, ভগবান মহাপ্রভু বিশ্লেষণ कर रहे हैं उसी श्लोक का। কোন গোপী অন্য গোপীদের বলছেন, দেখো ব্রজেন্দ্র নন্দনের একই আশ্চর্য লীলা, সে অবশ্যই ব্রজের কন্যাদের পরিণয় করবে। পরিণয় করবে মানে পরিণয় का क्या लिखा है? বিবাহ। বিবাহ। বিবাহ করবে। অতএব গোপীরা জানেন যে কৃষ্ণের অধরামৃত তাদেরই নিজ ধন, এবং সেই অধরামৃত অন্যের লভ্য না, क्योंकि उन लोग का है क्यों? क्योंकि उन लोग से शादी करेगा। গোপীগণ কহ সব করিয়া বিচারে, গোপীগণ কহ সব করিয়া বিচারে। বলিए। संबोधता प्रभु है, नहीं है तो सची सुतानंद बोलिए। शशि सुधा प्रभु बोलिए। গোপীগণ কহ সব করিয়া বিচারে, কোন কোন তীর্থ কোন তপ কোন সিদ্ধ মন্ত্র জপ, এই বেণু কইল জন্মান্তরে, এই বেণু কইল জন্মান্তরে। কোন
কোন তীর্থ কোন তপ কোন সিদ্ধ মন্ত্র জপ এই বেনু কইল জন্মান্তরে এই বেনু কইল জন্মান্তরে। হে গোপীগণ বিচার বলুন প্রভু বলুন। এই গোপীগণ বিচার করে দেখো যে এই বংশী জন্মান্তরে অবশ্যই কোনো তীর্থ কোনো তপ কোনো সিদ্ধ মন্ত্র জপ করেছিল, যার ফলে সে কৃষ্ণেরই অধর সুধা এইভাবে পান করছে। এইভাবে মানে নিরন্তর ভাবে কন্টিনিউয়াস একদম। হেন কৃষ্ণাধর সুধা যে কইল অমৃত মুধা যারো আশায় গোপী ধরে প্রাণ যারো আশায় গোপী ধরে প্রাণ। হেন কৃষ্ণাধর সুধা যে কইল অমৃত মুধা যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ। এই বেন যজ্ঞতি স্থাবর পুরুষ জাতি সেই সুধা সদা করে পান সেই সুধা সদা করে পান। এই বেনু অযোগ্যতি স্থাবর পুরুষ জাতি সেই সুধা সদা করে পান সেই সুধা সদা করে পান। শ্লোকার্থ। শ্লোকার্থ এই বেনু অতিশয় অযোগ্য, কেননা সে স্থাবর বংশ জাতি, তার উপরে সে আবার জাতিতে পুরুষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও हरे कृष्ण। কৃষ্ণের तो एक तो है ये जो फ्लूट है ये स्थावर है। स्थावर क्यों है? क्योंकि बैम्बू ट्री है, ट्री तो मूविंग नहीं है ना। और स्थावर वंश जाति तो स्थावर वंश का जाति और तार ऊपर से आবার জাতিতে পুরুষ उसीलिए अयोग्य। आई डोंट नो ये क्यों बोले जाते पुरुष है तो अयोग्य हो गया। अब बहुत लोग खुशी हो रहे हैं बहुत। एनीवेज किंतु आगे हरे कृष्णा प्रभु जी, ये कौन सा चल रहा है? 17 है कि 18 है? 144 एकदम 144 लग गया। 144 means अंतलीला 17 और 18. 16.144 ओके 144 माने एकदम कर्फ्यू। हाँ देखिए हम लोग को पुरुष को बोला ना उसीलिए कर्फ्यू। তার উপর সে আবার জাতিতে পুরুষ। আগে কিন্তু কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কৃষ্ণের অধরের অমৃত সুধা যার আশায় গোপীরা প্রাণ ধারণ করে তা পান করতে। हरे कृष्णा। तो देखिए लास्ट में मेन जो भगवान का अधर अमृत सुधा ये किसको मिला? पुरुष लोग को मिला या नहीं मिला? मिला। हरे कृष्ण। अगला श्लोक। যার ধন না কহে তারে পান করে বলাৎকারে পিতে তারে ডাকিয়া জানায় পিতে তারে ডাকিয়া জানায়। प्रभु जी वे क्या जो प्रत्येक प्रकार के वर्णन योग्य अमृत की मधुरता को लागने वाला है? श्लोक चल रहा है, कौन रिपीट? श्लोक के बीच में मत बोलिए। ओके ओके रिपीट ज्योति माता जी नहीं, पूनम जैसे बोलिए। যারো ধন নাহে কহে তবে পান করে एक बार फिर से बोले प्रभु जी बार। अरे बाबा तो एक लाइन श्लोक ना पूरा बोलते हुए
তার তপস্যার ফল দেখে ইহার ভাগ্য বলো, ইহার উচ্ছিষ্ট মহা জনে খায়, ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায়। তার তপস্যার ফল দেখে ইহার ভাগ্য বল, ইহার উৎকৃষ্ট মহাজনে খায়। यस, बोलिए एक एक प्रश्न सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु यहाँ पे जो लिखा है कि जो प्रत्येक प्रकार के वर्णन योग्य अमृत की मधुरता को लांघने वाला है, ऊपर वाले श्लोक में। सेकंड लाइन सेकंड सेंटेंस में लिखा है क्या? हाँ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কৃষ্ণের অধরের অমৃত সুধা যার আশায় গোপিকারা প্রাণ ধারণ করে, যার আশায় মানে जिसके लिए वो नहीं प्रभु, उसके पहले वाला लाइन ओ, लिखा है कि फिर भी यह बंसी कृष्ण के होठों का के उस अमृत का पान कर रही है जो प्रत्येक प्रकार के वर्णन योग्य अमृत की मधुरता को लांघने वाला है। हाँ मीन्स जितना भी कैटेगरीज ऑफ अमृत है सब फेल होगा, इतना टेस्टी है। यही तो समझ में आ रहा है मुझे। हरे Yes, कृष्ण प्रभु, हाँ, ये श्लोक से जितने हैं ये मतलब कविराज गोस्वामी जी के लिखे हुए कह रहे हैं कि ये भागवतम के? नहीं, भागवतम का श्लोक तो रामानंद राय ने बोला, फिर महाप्रभु उसका विश्लेषण कर रहा है। उसीलिए देखिए पहला इन्वर्टेड कॉमर्स क्यों? क्योंकि गोपिकारा एक दूसरे को बोल रही है। दूसरा क्यों? महाप्रभु उन लोग को कोट कर रहा है। क्लियर है ना? भागवतम से मिलता हुआ लग रहा है ना, इसीलिए। एकदम नहीं, भागवतम में कहे ये तो पूरा चैतन्य चरितामृत का ट्यून है। भागवतम में ऐसा श्लोक है ही नहीं, है ही नहीं। एक भी श्लोक ऐसा ट्यून होगा ही नहीं भागवतम में। कोई भी श्लोक दिखाई ऐसा कंस्ट्रक्शन, आप लोग कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं ना स्क्रीन में? तो अर्थ पढ़ के लग रहा है कि भागवतम का है, लेकिन श्लोक ऐसा नहीं। हाँ, तो लिखा है तो महाप्रभु ये महाप्रभु बोल रहे हैं क्या प्रभु? एकदम विश्लेषण कर रहा है। ऐसा कंस्ट्रक्शन भागवतम नहीं मिलेगा। ओके, ये सुनीति राधिका माता जी। प्रभु जी जो सुमना माता जी पूछी ना वही क्वेश्चन था मेरा। ओके, अगला श्लोक 146 अभी। अर्थ तो हुआ नहीं, अर्थ कहाँ हुआ? শ্রী কৃষ্ণের অধরামৃত যদিও গোপিকাদের স্বকীয় ধন। यस, गायत्री राधिका माता जी। प्रभु जी 140 में तो लिखा हुआ है भागवतम का श्लोक है। वो तो रामानंद राय वाला श्लोक। अच्छा, रामानंद राय श्लोक एक बोलेगा और महाप्रभु उसका विश्लेषण करेगा। तो इसके बाद अपने श्लोक का महाप्रभु विश्लेषण कर रहा है क्या प्रभु? हाँ जी, हाँ, 140 वाला श्लोक रामानंद राय ने बोला। देखिए 139 में देखिए वो लिखा हुआ है, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মনের ভাব বুঝে রামানন্দ রায় গোপিকাদের সম্মুখে একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন, है ना? 139 में लिखा हुआ है, देखिए। ওকে, শ্রীকৃষ্ণের অধনামৃত যদিও গোপিকাদের স্বকীয় ধন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তাদের না বলে বহলপূর্বক पान करे। अभी शौकियो धन क्या लिखा है हमको मालूम नहीं, ये तो परकीय धन होना चाहिए। हिंदी में क्या लिखा है? शौकियो लिखा है क्या? गोपियों का धन, गोपियों का धन से गोपियों का शौकियो धन लिखा है इसमें। इंग्लिश में क्या है? ज्योति माता जी नहीं है क्या? अच्छा, इंग्लिश में क्या 145 शौकियो क्यों लिखा है? गोपी माने तो 145। Although the nectar of Krishna's lips is the absolute property of the gopis. अच्छा, anyways, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তাদের না বলে বলপূর্বক পান করে এবং গোপিকাদের উচ্চ রবে पान करते आह्वान करे। उच्च रवे माने बहुत जोर से बजाते हैं ना भगवान, तो उतना हाई वॉल्यूम में उनको बुलाते हैं, आओ पान करो। अब यहाँ पर स्वकीय का प्रभु तो मतलब हो गया उनका अपना, सबको लगता है कि मेरा ही है। हाँ, अपना राइटफुल प्रॉपर्टी। हाँ, राइटफुल। फिर भी बलात्कार मतलब कि एक दूसरे को डिफीट करके पाना चाहते हैं। আবার এই বেনুর তপস্যার ফল এবং ভাগ্যর বল দেখো,
তার উচ্ছিষ্ট মহাজনেরাও পর্যন্ত খান। এটার মানে কি? Even great devotees drink the nectar of Krishna's lips after the flute has done so. मैंने हमको लग रहा है वो जो बांसुरी का आवाज जो कान में जाता है वही उच्छिष्ट होगा ना? क्या आप लोग को लगता है? थोड़ा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने शेयर नहीं किया, तो हम लोग को एक दूसरे को शेयर करना पड़ेगा। ये उच्छिष्ट है क्या? वही होगा, बांसुरी का धनी होगा, महाजन यानी भक्त लोग के कान में भी जाता है। हाँ वही होगा। अगला श्लोक 146। मानस गंगा कालिंदी ভুবন পাবনী নদী কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান, কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান। মানস গঙ্গা কালিন্দী ভুবন পাবনী নদী কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান, কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান। বেনু ঝুটা ধরো রস হইয়া লোভে পরবশ, সেই কালে হর্ষে করে পান, সেই কালে হর্ষে করে পান। রেণু জোটা ধরো রস হইয়া লবে পরবশ, সেই কালে হর্ষে করে পান, সেই কালে হর্ষে করে পান। ये सब श्लोक जितना स्लो पढ़ेगा उतना मधुर प्रकाश होगा। स्लो, एकदम स्लो पढ़ना चाहिए। कृष्ण जखन भुवन पावनी कालिंदी, भुवन पावनी माने पूरे त्रिभुवन को उद्धार कर सकता है, कालिंदी माने যমুনা। ও মানস গঙ্গাতে स्नान करें, मानस गंगा वहीं से हम लोग शुरू करते हैं ना परिक्रमा, तखन कोई कोई करता है वहां से तारा परिक्रमा तो प्रभु कहीं से भी शुरू हो जाती है, हाँ, राधा कुंड से या फिर वो तो है दान घाटी से। यूजुअली, तो वो तो है। তখন তারা লোভ পরবশ হয়ে বেনুর উচ্ছিষ্ট অধর রস হর্ষ ভরে পান করে। अच्छा, ये क्यों? भगवान जब स्नान करते तो तखन तारा लोभ परवश हुए बेनुर उच्छिष्ट अधर रस, क्योंकि भगवान स्नान कर रहे तो उन लोग का अधर, उनका अधर का जो रस है तो वो तो पानी में मिल गया, तो उस हिसाब से पान कर रहे हैं। ये तो हमको समझ में आया। হরে কৃষ্ণ বাবুজি, আগের শ্লোকে বললেন ভক্তরা এই উচ্ছিষ্ট পান করে, এখানে এই গঙ্গা কালিন্দির কথাই বলছে ভক্ত। अच्छा, ओके। यहाँ तो क्या कैसे पान कर रहे हैं? क्योंकि स्नान कर रहे हैं भगवान, तो उनका अधर का जो रस है उस हिसाब से पान कर रहे हैं। कौन कौन पान कर रहे हैं? यमुना नदी और मानस गंगा। मानस गंगा। अगला श्लोक। एतो नारी बहु दूरे বৃক্ষ সব তারো তীরে তপ করে পর উপকারী তপ করে পর উপকারী। এত নারী গরব দূরে वृक्ष सब तारे तीरे तप करे पर उपकारी तप करे पर। নদীর শেষ রস পাইয়া মূল দ্বারে আকর্ষিয়া কেনে পিয়ে বুঝিতে না পারি কেনে পিয়ে বুঝিতে না পারি। नदीर शेष रस पाया मूल दारे आकर्षिया केने पिए बुझिते ना पारी
কেনে পিয়ে বুঝিতে না পারি। তো মহাপ্রভু বললেন, নদীর কথা দূরে থাকুক, তারা তো নারী। সেই নদীর তীরস্থ তাপসী সদৃশ পরোপকারী বৃক্ষগুলিও কি জন্য যে মূল দ্বারে নদীর উপভুক্ত শেষ রস আকর্ষণ করে পান করে তা বুঝতে পারি না। आई थिंक बहुत फेमिनिस्ट है ये गोपी लोग। नदी लोग को क्योंकि उन लोग ओके एनीवेज 147 में लिखा है इंग्लिश में, aside from the river, the trees standing on the banks like great aesthetic and engaging in welfare activities for all living entities drink the nectar of Krishna's lips by drawing water from the river with their roots. आहा, वैसे सब वृक्ष तो सब पानी सिंचन करते हैं ना सब नदियों का पानी, तो उससे उनको भी अधर का रस मिल गया। हरि बोल। We cannot understand why they drink like that. उन लोग पुरुष हैं, उन लोग को कैसे मिल गया इसे? अगला श्लोक 148। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। हरे कृष्ण। এই যে এখানে বলছে যেই নদী তীরস্থ তাপস, তাপস এখানে তপস্যারত বাংলায় হবে, আপনার ইংলিশে অনেকগুলো মিনিং দিয়েছে। 147 है ना? হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু। हाँ हाँ प्रभु हाँ। সেই নদী তীরস্থ তাপস সদৃশ পরোপকারী বৃক্ষগুলি। আচ্ছা, সেই নদী তীরস্থ তাপস, দেখে তো ইংলিশে মিলিয়ে তাপস বলতে তপস্যা, বাংলায় তপস্যারত। हिंदी में महामुनि। the trees on the banks like great तपस्वियों जैसा तपस्वी। aesthetics माने साधु, हाँ तपस्वी, हाँ करेक्ट। সেই নদী তীরস্থ বলে লিখা হতো পরোপকারী, हाँ ठीक বলেছেন पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये नदी कथा धुगे ठाकुर तागा तो नागी, तो उनको एक्सक्यूज को देगा नदी को नागी है बोल के, ऐसा ये नहीं समझ में आया। हाँ, नदी को तो छोड़ ही दीजिए, ये वृक्ष को भी मिल रहा है, हम जो ये पान, ये अदर অধরামৃত মানে নদী তো পান করছে, এবার নদীর জল তো গাছের শিকড় দ্বারাও পান হচ্ছে না, তার মানে বৃক্ষগুলিও পাচ্ছে। गोपीज आर फीलिंग जेलस। हाँ प्रभु वृक्ष तो पुरुष है ना। নিজাঙ্কুরে পুলকিত पुष्पे हास्य विकसित। एक्चुअली कभी कभी पुरुष और स्त्री में भेद नहीं किया गया है, क्योंकि एकमात्र पुरुष तो भगवान है, और जैसे यहाँ देख रहे हैं पुरुष और स्त्री में भेद हो रहा है चिन्मय जगत में भी। निजांकुरे पुलकित पुष्पे हास्य विकसित मधु मिशे बहे अश्रुधार, मधु मिशे बहे अश्रुधार। सची सुतानंद प्रभु जी बोली। निजांकुरे पुलकित पुष्पे हास्य विकसित मधु मिशे बहे अश्रुधार, मधु मिशे बहे अश्रुधार। बेनुरे मानी निज जाति आर्जेर जन पुत्र नाती, वैष्णव हইলে आनंद विकार, वैष्णव हইলে आनंद विकार। बेनुरे मानी निज जाति आर्जेर जन पुत्र नाती, वैष्णव हইলে आनंद विकार, वैष्णव हইলে आनंद विकार। সেই সমস্ত বৃক্ষ নিজ নিজ অঙ্কুরে পুলকিত এবং পুষ্প বিকাশ রূপে হাস্য বিকশিত হয়ে মধুর ছলে অশ্রুধারা নিক্ষেপ করে।
Hare Krishna. মনে The হয় trees on the bank of Yamuna and Ganges are always jubilant. সেই সমস্ত বৃক্ষ নিজ নিজ অঙ্কুরে পুলকিত এবং পুষ্প বিকাশ রূপে হাস্য বিকশিত। They appear to be smiling with their flowers and shedding tears in the form of flowing honey. अच्छा, तो वो सब वृक्ष से मधु गिर रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है अशोक प्रभु, ओके। तो they appear to be smiling with their flowers and shedding tears. तो स्माइल कैसे कर रहा है? अपने फ्लावर खिला हुआ है तो स्माइल लग रहा है। इन द फॉर्म ऑफ फ्लोइंग हनी, शेडिंग टीयर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लोइंग हनी। तो जो मधु गिर रहा है वो अश्रुधार के जैसा लग रहा है। आगे মনে হয় আর্য পুরুষদের পুত্র পৌত্র বৈষ্ণব হলে তারা যেমন আনন্দ বিকার লাভ করেন, বৃক্ষগুলিও যেন তাদের সবংশীয় বৃক্ষ জাতির বেণুকে বৈষ্ণব হতে দেখে এইভাবে আনন্দিত হচ্ছেন। अभी ये फ्लूट वैष्णव हो गया भगवान का, तो उन लोग की बहुत खुशी है। खुशी से आंसू गिर रहा है हानि के तौर से, और हंसी फूल की तरह से भी खिल रहा है। Just as the forefathers of a Vaishnava son or grandson feel transcendental bliss, हम लोग का वंशीय एक वैष्णव बोलो, कितना आनंद का बात। सर्वोच्च पद लाभ कर लिया इसलिए सभी खुशी है। The trees feel blissful because the flute is a member of their family. मेंबर है ना सब। बैम्बू क्या जाति, क्या बोला था, स्थावर जाति ना, ऐसे कुछ बोला था ना आगे। यस, सुनीति राधिका माता जी। और मुझे यहाँ पे गंगा नदी के बारे में क्यों दिया हुआ? यमुना तो है वहाँ पे, गंगा, मानसी गंगा में भी स्नान करते हैं भगवान। ओके, दिया हुआ है पहले तो मानसी। ओके मैम। सुमना गौरंगी माता जी। तो वही प्रश्न था गंगा नदी का ही, क्योंकि पहले तो लिखा था मानसी गंगा और अभी खाली गंगा नदी लिखा है, तो वही कंफ्यूज हो गया। आप लोग का टेलीपैथी अच्छा है, दोनों एक ही प्रश्न एक ही समय। अगला श्लोक 149। कितना बाकी इधर हो जाएगा चैप्टर आज। বেনুর তপ জানি যাবে, সেই তপ করি তবে, এ অযোগ্য আমারা যোগ্যা নারী, এ অযোগ্য আমারা যোগ্যা নারী। বেনুর তপ জানি যাবে, সেই তপ করি তবে, এ অযোগ্য আমরা যোগ্য নারী, এ অযোগ্য আমরা যোগ্য নারী। জানা পাইয়া দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারী, তাহা লাগি তপস্যা বিচারি, তাহা লাগি তপস্যা বিচারি। জানা যাইয়া দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারী, তাহা লাগি তপস্যা বিচারি, তাহা লাগি তপস্যা বিচারি। গোপীরা তখন বিবেচনা করলেন এই বেনু নিতান্ত অযোগ্য, কিন্তু আমরা যোগ্যা নারী। বেনুর যে কি তপস্যা তা জানতে পারলে আমরাও সেইভাবে তপস্যা করব। আমাদের মনের কথা যে এই যে অযোগ্যা বেনু যে কৃষ্ণের অধরামৃত পান করছে তা দেখে আমরা দুঃখে মরে যাচ্ছি, সেজন্যই আমরা বেনুর তপস্যা বিচার করছি। उन लोग क्या तपस्या करके ऐसे मिला होगा, हम लोग वही करेंगे तपस्या फिर। सुमना गौरंगी माता जी। तो वो यहाँ पे गोपी अपने आप को योग्य क्यों बता रही है? ऐसे भक्त तो अपने आप को योग्य कभी नहीं बताते। ये उन लोग का हक है भगवान के ऊपर। उनका इंटरनल प्रॉपर्टी। शौकियो थोड़ा आगे आया था ना, शौकियो, दिस इज माय राइट, दिस इज माय,
इन लोग ले रहे हैं, इन लोग क्या तपस्या क्या होगा? Krishna is mind. They all think about Krishna is mind. यस, कृष्णा, दे हैव राइट ऑन कृष्णा, ये उन लोग का अधिकार है भगवान के ऊपर। ऐते को प्रलापो कोरी, ऐसे प्रलाप कर रहे थे कि ऐसे भी प्रेमा बेशे गौरो होरी, ये श्लोक कौन बोला हम पूछेंगे फिर आप लोग को। संगे लइया स्वरूप रामाराय, संगे लइया स्वरूप रामराय। এত প্রলাপ করি প্রেমে বেশে গৌর হরি সঙ্গে লইয়া স্বরূপ রামারায়ে সঙ্গে লইয়া স্বরূপ রামারায়ে। কবু নাচে কবু গায়, ভাবা বেশে মূর্ছা যায়, এ রূপে রাত্রি দিন যায়, এ রূপে রাত্রি দিন যায়। কবু নাচে কবু গায়ে ভাবা বেশে মুছা যায় এই রূপে রাত্রি দিনে যায় এই রূপে রাত্রি দিনে যায়। यस, पूनम माता जी कौन बोला ये श्लोक? यस, ये कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। क्यों? इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, प्लस गौरहरि लिखा है। गौरहरि तो अपने बारे में नहीं बोलेगा ना। दूसरी बात देखिए, अच्छा से गौर कीजिए, ये ट्यून चलते चलते आ रहा है, महाप्रभु ऐसे ट्यून में बोल रहा है, अभी कविराज गोस्वामी भी इस ट्यून में घुस गया, अभी कविराज गोस्वामी भी ऐसे ट्यून में बोलने लगा, है ना। এইভাবে প্রলাপ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়কে নিয়ে কখনো নাচলেন, কখনো গাইলেন, কখনো ভাবাবেশে মূর্ছিত হলেন। এইভাবে মহাপ্রভু রাত্রি দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথের শ্রীচরণ, শিরে ধরে করে যারো আশ, শিরে ধরে করে যারো আশ। স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথে শ্রীচরণ, শিরে ধরি করি যারা শিরে ধরি করি যারা। চৈতন্য চরিতামৃত, অমৃত হইতে পরামৃত, গায়ে দিনহীন কৃষ্ণ দাস, গায়ে দিনহীন কৃষ্ণ দাস। চৈতন্য চরিতামৃত, অমৃত হইতে প্রমাণিত, গায়ে দিনহীন কৃষ্ণ দাস, গায়ে দিনহীন কৃষ্ণ দাস। স্বরূপ দামোদর, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী এবং রূপনাথ দাস গোস্বামী শ্রীপাদ পত্নী আমার মস্তককে ধারণ করার আশা করে আমি দীনহীন কৃষ্ণ দাস অমৃত থেকে মধুর শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গাইছি। ইতি শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থের অন্তলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, সবে বলো चैतन्य चरितामृतम की जय, कविराज गोस्वामी की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि।